Hello friends, today grade 3 we are going to read and understand the sun, the moon and the stars chapter. Meet, are you ready to understand this chapter? Yes. Okay, so Mihit is a very good reader and he will be reading and I will be explaining you and we'll see what important terms will be there so that during the exam you know what to do. Okay, Mihit, starts reading clearly. During the daytime, when you look up at the sky, Come you here, shift see here. bright light. But at night, you cannot see the light of the sun. Stop. During the daytime. During the daytime मतलब During the daytime, मतलब सुबह. Daytime मतलब सुबह. हाँ. When you look up at the sky, you see. What do you see up in the sky? Sun. Bright sunlight. बहुत अच्छी रोशनी होती है ना सुबह. बिल्कुल अच्छी रोशनी सन की. But at night in the sky when you look, can you look at the bright sunlight? रात को सनलाइट होती है तो वो यही कह रहा है ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन यू लुक अप एट द स्काई यू सी ब्राइट सनलाइट बट एट द नाइट you cannot see the light of the sun and the stars. Why? Let us study. Mihit is a very good reader, so follow his reading skills. See, he doesn't get bored by reading long chapters. Okay, the topic is sun. Mihit is going to read the sun very clearly. The sun is the huge ball of hot gases. Stop. The sun is a huge ball. What is a huge ball? बहुत बड़ी ball. बहुत बड़ी. And it is a ball made up of rubber? No, it is a ball made up of Gases. gases. What kind of gases? Hot gases. Okay. It is the star nearest to the earth. So Meet, here fill in the blank will be is sun a star? True. Very good. True. Sun is a star. Is sun the star that is nearest to the earth? True. True. Very good. Next. The sun has heat and light of its own. Okay, ma'am can give you a true or false. Sun has heat and light of its own. उसके पास खुद की गर्मी, heat और खुद की light होती है. True or false? True. Very good. Next. The sun and the 8 planets revolving around it form the solar system. Okay, ma'am will ask what forms the solar system. Heat solar system किससे बनता है? When the 8 planets And revolve around no. the sun is called solar system. Okay, the sun and the 8 planets. मैम पूछेगी सोलर सिस्टम किससे बनता है? The sun and the 8 planets around it. सन के अराउंड कितने प्लैनेट्स हैं? 8. सन के अराउंड कितने प्लैनेट्स हैं? 8. तो सन एंड द 8 प्लैनेट्स. कितने प्लैनेट्स हैं ये? 8. Yes, they form the solar system. आपको ट्रू और फॉल्स? When the sun also joined, it became 9 planets. Is sun a planet? No, but the solar system family make bigger. The sun and the 8 planets together make a solar system. In addition to the 8 planets, the solar system also consists of. और क्या क्या चीजें होती हैं सोलर सिस्टम में? मीत पढ़ना क्या क्या और चीजें होती हैं? मून, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, माइनर प्लैनेट्स, डस्ट एंड गैस. ये कहना चाह रहा है 8 प्लैनेट्स तो हैं ही. इन एडिशन मतलब 8 प्लैनेट्स के साथ और क्या क्या चीजें होती हैं that forms the solar system? Moon, repeat. Asteroids, comets, minor planets. Minor मतलब छोटे. Minor मतलब छोटे छोटे planets, dust and gas. इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो मीत आपने सन के बारे में क्या पढ़ा? चलो लेट्स रिकैप फास्ट. सन इज अ स्टार, ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस. क्या है सन? ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस. वेरी गुड. मीत को तो याद भी हो गया. सन इज अ ह्यूज बॉल. ह्यूज का मतलब क्या होता है मीत? बहुत बड़ा. वेरी गुड, बहुत बड़ा. सन इज अ ह्यूज बॉल. और ये बॉल किस चीज से बनी है? हॉट गैसेस. वाओ. और सन अर्थ से पास है या दूर है? पास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नियर. नियरेस्ट. सन के पास अपनी खुद की हीट और लाइट है? ट्रू. Very good. Sun and the 8 planets revolving around the sun form a solar system. Right or wrong? Right. Very nice.
इन एडिशन टू द 8 प्लैनेट्स मीन और क्या क्या होता है सोलर सिस्टम में? सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? Moon, asteroids, comets, minor planets, the sun. Yeah, here the pronunciation was not minor, it was minor. So Mihit has learnt it. Come on, friends, give applause for Mihit Bhatia. Come on, Mihit. Yay! Very nice. He is a very good reader, and he's a very good cricketer also. But he is a superb reader. Now see, he'll read the planet portion and explain it to you. Come on. Planets are heavenly bodies that revolve around the sun. Planets are heavenly bodies. ये heavenly bodies क्या होता है मीत? Heavenly. जो स्काई में होती है. वाओ, सही बात है. प्लैनेट्स भी स्काई में ही होते हैं. सो दे आर हेवनली बॉडीज एंड दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. सो प्लैनेट, सन इज नॉट अ प्लैनेट. मीत ने कहा था सन इज अ प्लैनेट. नो, प्लैनेट वो होता है जो सन के इर्द गिर्द घूमता है. प्लैनेट क्या होता है? जो सन के इर्द गिर्द घूमता है. तो प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. जो भी चीज, अब ये मीत है, मीत इज द सन. और आज तो येलो भी पहना है, तो मीत इज श्योरली द सन. और अगर मैं उसके आस पास यू रिवॉल्व करूंगी यूं, तो मैं क्या बन जाऊंगी? प्लैनेट. प्लैनेट. मैं क्या बन जाऊंगी? प्लैनेट. तो वेरी गुड. प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज. इस बात पर किस तो बनता ही, ठीक है. प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. मीत इज नॉट एट ऑल शाय. आप उसकी डिबेट क्लास चेक करना और देखना वो कितना अच्छा बोलता है. Next, there are how many planets in the solar system? 8. Okay, can you name them? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Okay, so there are 8 planets in the solar पहले system. प्लूटो भी था. Okay, अब नहीं है. Okay, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Come on, repeat with your eyes closed. Let us check मीत को कितने आते हैं. मीत, close your eyes with your hands. Come on. Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Neptune, Uranus. एक रह गया. Come on again, मीत. Repeat. Earth. No, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are the 8 planets. Next, Meet. Very good. The planets move around the sun in a fixed path. It's called an orbit. मैम पूछेगी what is an orbit. एक तो मैम पूछेगी what are planets. मीत क्या जवाब दोगे? what are planets. चलो रिवीजन करो. The bodies which move around the sun. कोई भी बॉडी थोड़ी ना होती है. कहाँ होनी? Planets. नो, ये बॉडीज कहाँ होनी चाहिए? ऊपर सन में. The heavenly bodies that moves around the sun is called planet. हाँ, और अब मैम पूछेगी what are orbits. तो आप क्या बोलोगे? द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट. उनका फिक्स पाथ है. आपकी मम्मा भी जब आप अपने रास्ते से भटक जाते हो तो डांटती है ना? डांटती कि नहीं डांटती? वैसे भी इनका फिक्स्ड ऑर्बिट है. फिक्स ऑर्बिट का मतलब क्या है? वहीं पे चलना है. हाँ, एक ही जगह पर ये चलते रहते हैं. तो मैम पूछेगी मीत व्हाट इज एन ऑर्बिट. कम ऑन मीत, क्या जवाब देगा? रिवीजन अगेन. द planets which move around the sun at a fixed path is called the orbit. Okay, na fixed path is called orbit. Our Earth is the third and so far the only planet which has life on it. हम अर्थ पे रहते हैं ना. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ. सो थर्ड प्लैनेट हुआ ना. कैसे हुआ ये थर्ड प्लैनेट? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ. And it is the only planet where living beings can survive because it has atmosphere. It has atmosphere. और अभी कोई भी planet पे life है या नहीं ये पता नहीं है. अभी तक तो ये पता है कि Earth is the only planet. Come on यार, y'all are such educated children now. Research and let me know where is life possible other than Earth. है कि नहीं? So आपको ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने पड़ेंगे. Earth is the third and so far the only planet which has life on it. Planets do not have the light on their own. ये पक्का fill in the blank मैम पूछेगी. मैम पूछेगी क्या? कि planets have their own light. True or false? False. Planet की खुद की लाइट नहीं होती. अरे ये मैम पूछेगी planets की खुद की लाइफ होती हो. लाइट नहीं. प्लैनेट्स की लाइट होती है? प्लैनेट्स की नहीं होती मैम. ये 100% पूछेगी.
प्लैनेट की लाइट होती है? नो। मीत अभी भी ये गड़बड़ कर रहे हैं बच्चे, 100% फिल इन द ब्लैंक से मार्क्स गवा के आएंगे। यूं कर दे, नो नो। प्लैनेट की लाइफ होती, प्लैनेट की खुद की लाइट होती है? नो। अरे कुछ मजे में बोल, नहीं तो ये भूल जाएंगे बच्चे। प्लैनेट्स की खुद की लाइट होती है? फॉल्स। नहीं होती भाई, नहीं होती, नहीं होती। प्लैनेट की खुद की लाइफ नहीं होती। चलो एक बार हम ये सॉन्ग गाते हैं। प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती, प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती। ट्रू और फॉल्स में 1 मार्क कटवा मत लेना बच्चों। प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन फॉलिंग ऑन देम। किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं? रिफ्लेक्ट का मतलब थ्रो करना। जो सन उनकी लाइट, सन की लाइट जो उनके ऊपर आती है, उसी की वजह से हम उनको देख सकते हैं। इसका मतलब हम मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून को नहीं देख पाते क्योंकि उनकी खुद की लाइट नहीं है। हम देख तो पाते हैं, कब उन्हें देख पाते हैं? जब सन की लाइट उन पर रिफ्लेक्ट होती है। उनके पास वो खुद की अपनी लाइट, आंखों से नहीं देख सकते, हमको हम टेलीस्कोप ही होता है। हम उनको तब तक नहीं देख सकते जबकि सन की रोशनी उन करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके और पास हम खुद की अपनी रोशनी नहीं आईज होती। से भी नहीं देख सकते, हमको टेलीस्कोप चाहिए। हाँ, और हम उनको देख ही नहीं सकते। सन की लाइट जब पड़ेगी उनके ऊपर तभी हम उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो खुद के पास अपनी लाइट है ही नहीं। और टेलीस्कोप भी जरूरी है। अब हम मून के ऊपर आ रहे हैं टॉपिक के। मिहित पढ़ना, देख, रीड, लिसन। मिहित हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ रीडिंग। कम ऑन, सी हाउ ही रीड्स। The moon revolves around the earth. स्टॉप। मून किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है? Earth. मून रिवॉल्व्स Around the earth. एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द Sun. पर मून अर्थ के इर्द गिर्द, हम जो प्लैनेट पर रहते हैं उसके आसपास कौन रिवॉल्व करता है? Moon. मून। अरे वीडियो नहीं बन रही? बन रही। हम जिसके रिवॉल्व करते हैं तो मून। नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इट इज कॉल्ड द Natural satellite of the earth. सो मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून रिवॉल्व्स अराउंड द Earth. मून को नेचुरल सैटेलाइट क्यों बोला गया? सैटेलाइट क्यों बोला गया? मून इज द मून revolves around the earth. It is called the natural satellite of the earth. Moon is called the Natural satellite of the earth. moon is called the Natural satellite. हमने of सैटेलाइट the पढ़ा था। earth. सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट्स क्या होता है? The heavenly bodies that revolve around the planets. The heavenly bodies that revolve around the Planet. So moon is a heavenly body. Moon is a heavenly body or not? True. And it revolves around the planet Earth. So moon is also a satellite. मैम पूछेगी, is moon a satellite mean? True. Yes. Why is moon called a satellite? क्योंकि वो अर्थ के आगे पीछे घूमता ना, है। हिंदी में ऐसे लिख के आ जाओगे, मून अर्थ के आगे पीछे घूमता है। मैडम मुझे मार्क्स दे दो, इसलिए वो नेचुरल सैटेलाइट है। ऐसे लिख के आने वाला है मीत। It revolves around the earth. Planet Earth. Planet A satellite is a body that revolves around the planet Earth. So moon revolves around the planet Earth. So it is called a natural satellite. Moon is called a Natural satellite. any heavenly body that revolves around a planet in a fixed path is called a satellite. ये तो मीत आईज क्लोज करके आपको बोलने वाला है, क्योंकि इसको पता है सैटेलाइट क्या है। कम ऑन मीत, व्हाट इज द सैटेलाइट? क्लोज योर आईज एंड पे। Any heavenly body that revolves around the planet is called satellite. एक चीज मिस हो गई, खाली रिवॉल्व करने से हो जाता है? नहीं, it has to revolve around a planet in a fixed path. then only it is called a satellite. How many days does a moon take to complete one rotation? Come on, कितना टाइम लगता है मून को अर्थ के 34 hours. घूमने में? नो, कितना टाइम लगता है मून को? मून टेक्स अबाउट 27.3 days to complete one 27 rotation. months. 27 months. 27.3 days. Months or 27 years? days on its axis and one revolution around the earth. It takes about 27.3 27 full days लेता है, और कुछ हिस्सा
नेक्स्ट डे का लेता है, लेकिन 28.3 डेज। ये पूछेगी मैम हाउ मच टाइम डज अ मून टेक टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। कम ऑन, बोलो, मीत रीड दिस। It takes about 27.3 क्लियरली days बोलो ना, तभी तो बच्चों को लर्न होगा। moon to 27.3 complete the rotation days. on its axis. Okay. It takes about 27.3 days for the moon to complete. बस मीत का 1 चैप्टर फिनिश हो रहा है, फिर वो ब्रेक लेकर फिर नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाएगा। मीत, आर यू रेडी टू मेक द वीडियो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर अवर ब्रेक? यस। इट टेक्स अबाउट 27। देखना मीत को वीडियोस में, मीत आपको हर 3rd स्टैंडर्ड के ग्रेड का अपना साइंस का चैप्टर सिखाएगा इसी तरीके से। सो वेट एंड वॉच फॉर द सीरीज ऑफ साइंस विद आवर एक्सपर्ट Mihir Bhatia. Come on Meet, read करके दिखाओ वापस। It takes about 27.3 days for the moon to complete 1 rotation on its axis and 1 revolution around the earth. अभी आपको डिटेल में नेक्स्ट ईयर में आएगा। The moon is about how many kilometers far is moon from the earth? Come on. 84,400 Oh my kilometers God. away from the Can you Earth. repeat it, Meet? 3,84,400 kilometers. Oh my away God. from Earth. 3,84,400. 3,84,400 kilometers away from the earth. Next, Meet. You know that the moon does not have lights of its अभी तो own. हमने पढ़ा था मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है। It reflects the light of The sun, which falls on ये it. भी हमने पढ़ा था। We can see मेरा एक फैक्ट भी है। Okay. My name meaning is the Lord Sun. अच्छा, Meet means Lord Sun. Sun. Wow. Next, we can see only that part of the moon which is lit by the sun. Lit by the sun मतलब lit, इसके ऊपर सन की लाइट रिफ्लेक्ट कर रही हाँ, है। मून के पास खुद की लाइट तो है नहीं, तो जिस हिस्से पे सन की लाइट गिरती है वो वाला हिस्सा हम और मून का सन देख की लेते लाइट हैं। तो येलो होती है, तो उसके ऊपर ब्लू व्हाइट लाइट कैसे गिरती है? किस पे व्हाइट लाइट कैसे गिरती है? ये तो मून गूगल करके बताना सब बच्चों। मीत का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सन की लाइट येलो है पर मून की लाइट व्हाइट क्यों है? जल्दी बताना, हम इसके लिए वेट करते हैं। नेक्स्ट, वी कैन ओनली सी दैट दिस इज द रीजन व्हाई वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। व्हाई डू वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून मीत? क्यों अलग उसकी लाइट इतनी भर के और कम हो सकती है। अच्छा, मीत स्कूल में लिखकर आएगा इतनी मैम भर के कम हो जाती है, इसलिए वी कैन सी डिफरेंट। नो, मीत ये लिखेगा वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच इज लिट बाय द सन। सो वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। वी कैन सी, क्या बोलेगा मीत? वी कैन Different सी shapes ओनली of- दैट पार्ट ऑफ द मून। वी कैन सी only part of the moon that which the is lit by sunlight- the sun. हाँ, which is lit by the sun. we can see only that part of the moon which is lit by the sun. Next, Meet, you know here the different phases of the moon are, read karo, The different phases shapes of the moon. shapes of the moon are called phases of ये तो आएगा ही आएगा। मैम कहेगी व्हाट आर फेजेस ऑफ द मून। फेजेस का मतलब क्या होता है? अलग अलग शेप ऑफ द मून को हम फेज कहते हैं। न्यू मून मतलब कि मून है जो उसकी लाइट ही नहीं है। वो अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन डिफरेंट शेप ऑफ द मून, अलग अलग moon, शेप्स को हम न्यू मून, Phase हाफ कहते हैं। मून, फुल मून, क्रिसेंट मून और गिब्बस मून। 5 टाइप के मून्स होते हैं, मतलब अलग अलग 5 शेप होते हैं। अच्छा, तो पहला कौन सा होता है? न्यू मून मतलब मून पे लाइट ही नहीं है। When the moon is between the sun and the earth, जब यहाँ पर सन है, ये हमारा सन है, ये क्या है? और ये हमारी अर्थ है। ये सन से सीधा लाइट और रोशनी कहाँ आ रही है? अर्थ पे। अगर ये सन है तो सन से सीधा रोशनी किस पर आती है? अर्थ पे। लेकिन न्यू मून के दिन बीच में आ जाता है मून, बीच में आ जाता है मून तो अर्थ को वो ब्लॉक कर देता है, अर्थ को वो। लॉक कर देता है। तो when the moon is between the sun and the earth, तो उस दिन हम we cannot see the moon only। हम मून क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि
जिस हिस्से पे अर्थ है उस हिस्से पर मून की लाइट नहीं गिर रही है, उस हिस्से पे मून की लाइट, इसलिए हमें मून नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब हमें मून दिखाई नहीं देता तब हम उसे न्यू मून कहते हैं या अमावस्या कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अमावस्या। हाफ अमावस्या। मून का आधा। लेकिन न्यू मून कब होता है? न्यू मतलब उस दिन हमें मून दिखाई नहीं दे रहा। न्यू मून का मतलब क्या होता है? उस दिन हमको वो दिखाई क्यों नहीं दिखाई दे रहा मून? क्योंकि मून की क्या हालत हुई है, क्या हो गया मून को? क्यों नहीं आया आज? वो रो रहा है, आज वो स्कूल नहीं आएगा, उसको फीवर हो रहा है। मून क्यों नहीं दिखाई दे रहा आज अर्थ के ऊपर? क्या हो गया मून को? उसकी लाइट नहीं पड़ रही। क्योंकि मून आ गया है सन और अर्थ के बीच में। मून आ गया है सन और अर्थ के, उसे हम अमावस्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या। विद इन 3 days टाइम। अब 3 दिन बाद, अमावस्या के 3 दिन बाद, न्यू मून के 3 दिन बाद, न्यू मून के हम छोटा सा हिस्सा मून देखते हैं। वी कैन सी सम पार्ट ऑफ द मून। क्रिसेंट मून। और जब हम छोटा सा कोई भी मून का एक हिस्सा देख लेते हैं उसे हम क्रिसेंट मून कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरी क्रिसेंट की स्पेलिंग बताना बच्चों को। CRESENT। नहीं, देखा, मुझे पता था बच्चे ये गलती करेंगे। CRES, क्रिस। CRESCENT। मीत वापस बताना। अब मीत को लर्न हो गई। CRESCENT, क्रिसेंट। अब ये चश्मा उतार भी नहीं सकते क्योंकि पास में दिखता नहीं है मैम को, तो चश्मा पहन के रखना पड़ता है। मैम थोड़ी अच्छी नहीं लगती पर कोई बात नहीं, दिखता भी तो नहीं है। सो क्रिसेंट, CRES। तो क्रिसेंट मून और न्यू मून में क्या फर्क होता है? मीत फटाफट हिंदी में आपको ब्रश अप करेगा। मीत, न्यू मून मतलब उसका थोड़ा सा ऐसा दिखता है, न्यू मून में मून दिखता ही नहीं। ओके। इन अ वीक्स टाइम, पूरे हफ्ते के बाद क्या होता है ये बताना। वीक में क्या होता है? वी कैन सी 3 दिन बाद, अमावस्या के 3 दिन बाद क्रिसेंट मून दिखता है। और इन अ वीक टाइम, उसके एक हफ्ते बाद क्या होता है? वी कैन सी हाफ ऑफ द मून। एक वीक के बाद हम क्या देख पाते हैं मीत? आधा। और हाफ मून को हम क्या कहते हैं? हाफ मून। व्हेन मोर देन हाफ ऑफ द मून हम देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गिब्बियस मून। ये तो बहुत इजी नहीं था मीत। हाँ, ये तो क्या कहना चाह रहा था पहले मुझे बताओ। पहले न्यू मून आएगा। न्यू मून का मतलब क्या मीत? मून दिखेगा ही नहीं। फिर 3 दिन बाद क्या आएगा? क्रिसेंट मून छोटा सा। फिर उसके 1 वीक के बाद क्या आएगा? उससे थोड़ा बड़ा। हाफ ऑफ द मून आ जाएगा सीधा। क्या आ जाएगा? हाफ। हाँ, उस फेस को हम क्या कहते हैं? गिब्बियस मून। जब हाफ आएगा तब तो हाफ मून कहेंगे ना। हाँ। जब हाफ से ज्यादा आएगा क्या आएगा? हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो गिब्बियस बोलेंगे। और 2 हफ्ते के अंदर, इन अबाउट 2 weeks टाइम, अब हम क्या देख पाएंगे? फुल मून देख ले पाएंगे। कहते हैं पूर्णिमा। और पूर्णिमा के बाद अब वापस क्या होगा? दिस मून स्टार्ट्स श्रिंकिंग बैक। के दिन आता है। अच्छा, राइट है कि रॉन्ग चेक करना गूगल पे। आफ्टर दिस मून स्टार्ट्स श्रिंकिंग बैक। फिर मून क्या करता है? वापस पीछे श्रिंक होना शुरू कर देता है, उल्टी रास्ता चलता है। अब श्रिंक करेगा तो फुल मून क्या बन जाएगा? गिब्बियस बन जाएगा। हाफ बन जाएगा क्रिसेंट, और क्रिसेंट बन जाएगा न्यू। और फिर वो वापस वैनिश हो जाए। फिर वो यही चलता है। तो इस तरीके से सर्कल मून का चलता रहता है। इसको ड्राइंग के लिए भी मैम बोलेगी, ड्रॉ, एग्जाम में आएगा। मैम बोलेगी इसको रिपीट भी करना है। हाँ बोलो, मीत कुछ कहना चाह रहा है, बोलो। जो फर्स्ट फुटप्रिंट हमारे एक जिसका फर्स्ट फुटप्रिंट था मून पे, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपने कहाँ पढ़ा? मैम ने बताया। आपकी मैम ने बताया था? क्या बताया था? कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग का फर्स्ट। सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही था क्या ऑन द मून? उसका फर्स्ट फुटप्रिंट था मून। अच्छा, और उसके बाद आया एडविन ऑल्ड्रिन। कौन आया? एडविन। ये दोनों ही गए थे, एडविन ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 28 जुलाई 1969 की बात है। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, आप तो हुए ही नहीं, हम भी नहीं हुए थे। 28 जुलाई 1969 में एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ऑल्ड्रिन were the first one to step on the moon in the spacecraft Apollo 11। किसमें गए थे वो लोग? Apollo 11। ठीक है, अब there is no air वाला पढ़ो। There is no air and no water on the moon, so there is no life on it।
मैम पूछेगी why is there no life on the moon? Why is there no life on the moon? क्योंकि there is no air. एयर और वाटर के बिना हम कैसे जिएंगे? नेक्स्ट, मून पर और क्या क्या है मीत? इट हैज ओनली rocks, mountains, sand and dust. rocks, mountains, sand and dust. Rock, mountains, sand and its surface is covered with big holes. ये आएगा ही आएगा. What are craters? मैम Big holes के नीचे लावा होता है. अच्छा, बट मैम पूछेगी what are craters तो क्या लिखोगे? There is The surface of the moon is covered with big holes called craters. Next meet last पढ़ना. Surprisingly, but this is true. the footprints of astronauts who walked on the moon have not been erased till today because there is no air to remove them. एयर के बिना तो जो वहां पर पहले एस्ट्रोनॉट्स गए थे हु वर्कड ऑन द मून, उनकी भी फुटप्रिंट्स आज तक है. मतलब मून पर कभी भी चलोगे तो आपकी भी जो भी जाएगा उसकी फुटप्रिंट हमेशा ही रहेगी ना. हाँ. क्यों? क्योंकि वहां पर एयर ही नहीं है और एयर ही उसको रिमूव कर सकती है. वहां पर तो एयर नहीं है, वाटर नहीं है. एयर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, लेकिन फुटप्रिंट्स को हटाने के लिए एयर चाहिए. और अगर वहां पर एयर नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा? वो फुटप्रिंट्स हटेंगे ही नहीं. फुटप्रिंट्स हटेंगे ही नहीं. अब मीट्स ने पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट पढ़ लिया है. एक स्टार्स का टॉपिक बचा है. चलिए देखते हैं क्या करते हैं. मीट पढ़ो. व्हाट आर स्टार्स? कम ऑन. We can see stars in the sky at night. स्टार्स सबको पता है रात को ही नजर आते हैं. नेक्स्ट, वो रात को सुबह भी होते हैं पर आपको दिखते नहीं है क्योंकि सन की लाइट की वजह से. नेक्स्ट, अच्छे से क्लियरली पढ़ो बच्चों को बताने के They लिए. are very big in size. दे आर वेरी बिग इन. Size. Stars are much bigger than the sun. स्टार्स आर मच बिगर देन द. Sun. आपको पता है स्टार्स इतने छोटे क्यों नजर आते हैं? वो तो सन क्योंकि से वो बहुत बड़े कुछ हैं. ज्यादा ही दूर है. अच्छा, इसलिए कि क्या? कौन दूर है? सन दूर है. Star. अच्छा, कौन बड़ा है? कौन ज्यादा साइज में बड़ा है, सन या स्टार? Star. स्टार बड़ा है. अच्छा, लेकिन वो क्यों इतने छोटे लगते हैं? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ. नेक्स्ट मीट, द स्टार्स आर. Huge ball of fire. स्टार्स किससे बने हैं? कम ऑन. फायर एंड गैसेस. स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ. Fire in gas. नेक्स्ट, चलो. दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन. दे हैव लाइट. Of their own. सन के पास खुद की लाइट होती है. यस. स्टार के पास खुद की लाइट होती है. स्टार के पास खुद की लाइट होती है. मीत का बस 1 पैराग्राफ बचा है और वो कह रहा है कि वो आपको सेकेंड चैप्टर एक ब्रेक के बाद बताएगा. अभी वो थोड़ा थक रहा है तो ये चैप्टर कंप्लीट करके आप मीत को बाय बाय बोलना चाहोगे बच्चों? कैसे बोलोगे बाय बाय? बताना जरा. मीत बताना कैसे बच्चे आपको बाय बाय करेंगे. अभी 2 मिनट से मीत ये चैप्टर फिनिश कर रहा है. आप भी रेस्ट लेकर आओ, फिर हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे. नेक्स्ट मीत बोलो. दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन. सन की खुद की लाइट होती है. नेक्स्ट, Some stars are always found in groups to form of particular pattern or shape in the sky. Some stars are always found in groups. कुछ स्टार्स ग्रुप में होते हैं. मीत किस में होते हैं? group. ग्रुप में. वो कुछ स्टार्स इकट्ठे होते हैं ग्रुप में, तो उसके वजह से वो एक शेप बना लेते हैं. These groups. Little Bear, Ursa Major, Scorpius, Leo Lion और तो ये अलग अलग Great शेप्स Bear. बना लेते हैं ना. जब स्टार्स ग्रुप में होते हैं तो अलग अलग शेप बना लेते हैं. अगर मैम पूछेगी व्हाट आर कॉन्सलेशंस तो क्या बोलोगे आप? जब वो द ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड when कॉन्सलेशंस. the group of stars are छोटा ही. द ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड. constellation. अब वो कौन कौन से शेप बनाते हैं अपनी बुक में देखो. They are 88 constellations. ओ माय गॉड, 88 अलग अलग शेप्स हैं. और वो शेप्स दे फॉर्म शेप्स ऑफ वेरियस Objects and animals. ऑब्जेक्ट और एनिमल के शेप बनाते हैं वो लोग. किसके? Scorpius, Ursa Major, Leo, Pole एक्सेट्रा. Star. Pole Star सबसे बड़ा स्टार है. पर ये क्या कह रहा है? सो मैम बोल रही कुछ कॉमन कॉन्सलेशंस बताओ. तो कौन से बुलाओगे? स्कॉर्पियस, Scorpius, उर्सा मेजर और लियो. लियो. कुछ कॉमन. अगर मैम आपको बोलेगी कुछ कॉमन कॉन्सलेशंस बताओ तो आप क्या बोलोगे? स्कॉर्पियस, उर्सा मेजर और Leo. लियो. यू कैन सी द बिगेस्ट स्टार इन द नॉर्थ. इट इज कॉल्ड द Fourth star. It is also called Dhuru Tara. ध्रुव तारा. ध्रुव तारा.
एंड द पोल स्टार नॉर्थ में होता है. दिस स्टार हेल्प्स टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन. मैम बोलेगी नेम द स्टार दैट हेल्प्स यू टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन. क्या बोलोगे मीत? पोल स्टार एंड ध्रुव तारा. कम ऑन, लास्ट पैराग्राफ इन द चैप्टर इज ओवर. कम ऑन. What do you know? Why do the stars twinkle? The stars twinkle because the light of the stars come ऐसे down to पढ़ोगे the आप, किसी को earth. समझ ही नहीं आ रहा. The stars twinkle because the light from the stars come down to the earth through different layers of वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलते हैं. ट्विंकल. व्हाई डू दे ट्विंकल? मैम पूछ रही क्यों ट्विंकल करते हैं. बचपन से करता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. क्यों? हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. क्यों ट्विंकल करते हैं बताओ? क्योंकि जब वो स्टार्स अर्थ, जब उनकी रोशनी, जब उनकी जो लाइट है दैट कम्स डाउन टू द अर्थ थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. वो आपको, आप बड़े होगे तो आप लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ोगे. एटमॉस्फेयर की बहुत अलग अलग लेयर्स हैं. तो जब वो अलग अलग लेयर्स से उसकी लाइट पास होती है, सब हमें ट्विंकल नजर आते हैं. नेक्स्ट, द The स्टार्टिंग. study of the sun, moon, stars and planets is called astronomy. एस्ट्रोनॉमी. अगर आप बड़े होकर कॉलेज के बाद आपको सन मून और स्टार्स की पढ़ाई करनी है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? Astronomy. और जो लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, द पीपल हु स्टडी देम आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं. एस्ट्रोनॉमर. क्या बनते हैं? तो आपको एस्ट्रोनॉमी वाले कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ेगा. आप एस्ट्रोनॉमी पढ़कर एस्ट्रोनॉमर बन सकते हो. और आप टेलीस्कोप से देख सकते हो सारे प्लैनेट्स. अच्छा, द टेलीस्कोप इज यूज टू सी हेवनली बॉडीज फ्रॉम अर्थ. अगर आपको अर्थ से ये सारी हेवनली बॉडीज अगर आपको देखनी है तो आप किसके थ्रू देखोगे? टेलीस्कोप. टेक केयर. बाय बाय. मीत हैज फाइनली फिनिश्ड द चैप्टर. मीत, दूसरा चैप्टर कब पढ़ेंगे? कौन सा पढ़ने वाले हो दूसरा चैप्टर? वैसे डेज एंड नाइट्स. इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों के लिए. तो मीत ये सब अपने स्कूल के बच्चों को भेजेगा. तो जिसने भी स्कूल मिस कर लिया होगा, मीत कौन सा स्कूल में? एमपीएस में, 3rd ग्रेड में. अगर किसी ने भी मिस कर लिया तो उसकी ये वीडियो देखे और A+ से पास होकर हमें कमेंट करें कि मैम आपके चैप्टर सिखाए इसलिए हमारे A+ आए.